Assalamu alaikum dear students, my name is Imran Ghafoor Chaudhary and I am your instructor for this semester for the course of Principles of Introduction to Management. This course is about telling you various theories and concepts about management. So let's talk about first what are the course objectives. The first objective is to provide students with a theoretical background regarding Introduction to Management. So here we'll be talking about what are the basic theories in management and what theories are normally applied in businesses these days and what are the application areas where they are generally used. I'll be assisting you in acquiring these skills and knowledge with reference to the market applications and situations also. And I'll also provide you a virtual kind of environment where I'll be talking to you and you'll try to convey to you through my lectures what are the basic practices in management area. So these are the basic objectives. Now in course policy, let's discuss what are the major areas or major course descriptions or areas which we'll be covering in this course. Now these include talking about management and theories, organizational culture, decision making, planning fundamentals. We also talk about organizational structure and hierarchies. What is organizing? We'll talk about human resource management, leadership, understanding groups and teams, motivating employees, communication and controlling. So broadly these are the 13 areas which we will be covering in this course. Now, while talking about these course areas or course description, you may have noticed that it generally falls under 4 basic groups, which are planning, organizing, leading and controlling. And जैसे जैसे हम आगे course में चलेंगे, so you will be knowing that when you talk about management, it's about these 4 fundamental areas: planning, organizing, leading and controlling. और फिर इन में जो अदर चीज़ें आती हैं जैसे कम्युनिकेशन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, लीडरशिप है. So we'll be talking about these things also. Now course policy for this course. Now this is as per the prevailing policy. There will be 4 assignments in this course. We will be notified at regular intervals at what are the 4 assignments and you will be given valid time for completing those assignments. और वो जैसे जैसे आएंगे assignments आपको lecture के दौरान आपको पता चलता रहेगा. So पूरे semester में जिसमें almost there will be 32 lectures, there will be 4 assignments जो हमने complete करनी है. And obviously there will be 4 quiz also. 4 assignments हैं और 4 quiz हैं. Assignment का थोड़ा weightage ज़्यादा है, वो 15 marks होंगे total में से 100 में से, और जो आपके क्विज हैं इनकी जो वेटेज है वो 10 मार्क्स है. सो 4 असाइनमेंट्स फॉर 15 मार्क्स एंड 4 क्विजेस फॉर 10 मार्क्स. अच्छा, इसके अलावा देयर विल बी सेशनल एग्ज़ाम्स. देयर विल बी 2 सेशनल एग्ज़ाम्स. सेशनल एग्ज़ाम 1 जो होगा वो नॉर्मली 4 to 5 वीक्स की टीचिंग के बाद होता है, विच मीन्स एटलीस्ट लाइक 8 to 9 क्लासेस. And that will have a weightage of 10 marks. So जो आपका पहला सेशनल होगा उसकी weightage होगी 10 marks. And then there will be a second sessional exam जो कि another 5 weeks के गुजरने के बाद approximately होगा, and that will have a weightage of 15 marks. So that means कि आपके जो internal marks हैं उसमें आपके assignment के 15 marks, quiz के 10 marks, sessional 1 के 10 marks और सेशनल 2 के 15 मार्क्स जब एडअप होंगे तो आपके इंटरनल मार्क्स बनेंगे 50. अच्छा, उसके बाद फाइनली वी आर गोइंग टू हैव द फाइनल एग्ज़ाम जिसका वेटेज अनदर 50 मार्क्स होगा. सो दैट मेक्स 100 मार्क्स
एंड एज पर द प्रिवेलिंग पॉलिसी 50 मार्क्स आपको लेने हैं इस कोर्स में पास होने के लिए। सो ये तो था कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो है दैट वी विल बी यूजिंग इज मैनेजमेंट and it is by Stephen P. Robbins and Mary Coulter, or we'll be using the 10th edition of this book and it has been published by Pearson Education. So ये हमारा टेक्स्ट बुक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। The text book is Management by Stephen P. Robbins and Mary Coulter and we'll be using its 10th edition and it is from Pearson Education. और एक रेफरेंस टेक्स्ट हम भी यूज़ करेंगे। रेफरेंस टेक्स्ट जो है दैट इज़ मैनेजमेंट बाय चक विलियम्स, साउथ वेस्टर्न पब्लिशिंग, ये इसका रेफरेंस टेक्स्ट है। मेन चीज़ जो है वो दैट इज़ अ कोर्स टेक्स्ट बुक जो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो मटेरियल आपको इन स्लाइड्स में मिलेगा जो लेक्चर में साथ साथ चलेंगी, दे आर मेनली फ्रॉम द मेन टेक्स्ट बुक विच इज़ मैनेजमेंट बाय स्टीफन पी रॉबिन्स एंड मैरी कोल्टर। सो ये तो हमने थोड़ी बहुत बात की कि इस कोर्स में हमारी पॉलिसी क्या होगी। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दी है कि अगेन मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूँगा इस पॉइंट पे कि देयर विल बी 4 असाइनमेंट्स, ओवरऑल वेटेज 15 मार्क्स, 4 क्विजेज, ओवरऑल वेटेज 10 मार्क्स, 2 सेशनल एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट सेशनल एग्ज़ाम की वेटेज है 10 मार्क्स और सेकंड सेशनल की 15 मार्क्स। तो ये आपके इंटरनल मार्क्स कहलाएंगे और इंटरनल मार्क्स की जो ओवरऑल होगी वेटेज वो 50 मार्क्स है। और फाइनली वी आर गोइंग टू हैव अ फाइनल एग्जामिनेशन जिसके अनदर 50 मार्क्स हैं। टेक्स्ट बुक हमारी मैनेजमेंट बाय स्टीफन पी रॉबिन्स एंड मैरी कोल्टर 10th एडिशन है और ये इसमें से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। It's good time to start with the chapter 1, and chapter 1 is about introduction to management and organizations. इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने लगे हैं? Let's have a look on this. इस चैप्टर में we'll talk about what is management, management है क्या, and who is a manager, मैनेजमेंट क्या चीज़ है और फिर मैनेजर कौन है, क्या काम करता है, टाइप्स ऑफ मैनेजर्स क्या हैं, मैनेजर्स की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, किस किस्म के मैनेजर रोल्स होते हैं, फंक्शंस मैनेजर्स परफॉर्म, कि मैनेजरियल फंक्शंस क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि मैनेजरियल रोल्स क्या हैं, जिसका भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया कि मैनेजर इज सपोज टू परफॉर्म सम रोल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर रोल्स कौन कौन से होंगे मैनेजर के, और स्किल्स क्या होने चाहिए मैनेजर के पास, किस किस्म के स्किल्स अगर एक बंदे के पास हो, किसी पर्सन के पास हो, सो विल बी टर्म्ड एज अ गुड मैनेजर। सो वो रोल्स क्या है हमें वो भी देखना है। और स्किल्स हो गए क्या होने चाहिए, और फिर एंड में हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि जी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन हमारे लिए क्या है, वो फ्रेम रेफरेंस क्या है कि जिसके अंदर हम कहेंगे कि एक मैनेजर काम करता है। मैनेजर जो है वो अपने जो रोल्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो परफॉर्म करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन है क्या, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड फाइनली हम ये भी देखेंगे कि वाई वी आर स्टडिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की एप्लीकेशन क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और बाकी जगहों पे मैनेजरियल एप्लीकेशंस क्या हैं, और क्या मैनेजमेंट हर किस्म की इन्वायरमेंट में यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। इस पर हम थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू भी लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो कि मैनेजमेंट पढ़ने के बाद हमारी लाइफ में, हम जॉब में, नॉर्मल वे में क्या इफेक्ट और चेंजेस आ सकती हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। एंड इफ यू लुक एट द स्लाइड इट सेज कि जी मैनेजमेंट इज़ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, यानी कि काम दूसरों से करवाना और काम लेना, दैट इज़ मैनेजमेंट। डूइंग everything by yourself may not be the right definition, so we need to involve others, we need to manage others, we need to involve others in different kind of activities, but overlooking them, हमने उनको देखते रहना है, उनको टास्क देनी है, टास्क उनके लिए डिफाइन करनी है, और फिर वो जो काम कर रहे हैं उसका ये हमने एनालिसिस करना है कि दूसरों से हम काम तो ले रहे हैं, बट दैट वर्क विच वी आर गेटिंग थ्रू देम must be done, must be carried out in 2 ways. It must be efficiently done and it must be effectively done.
यानी कि मैनेजर जो है वो सिर्फ दूसरों से काम लेना नहीं उसका काम. मैनेजमेंट इज़ नॉट अबाउट ओनली गेटिंग द वर्क डन, इट इज़ गेटिंग द वर्क डन efficiently and effectively. Now let's see कि efficient और effectiveness दोनों में फ़र्क क्या है. What is efficiency and what is effectiveness? You see dear students, when we talk about efficiency, efficiency can be simply explained as a ratio between output produced and input consumed. यहाँ पे अगर आप स्लाइड पे देख रहे हो तो हमने मेंशन हुआ है यहाँ पे कि वी आर गेटिंग द वर्क डन बट विद अ मिनिमम ऑफ एफर्ट, मिनिमम ऑफ एक्सपेंस और वेस्टेज. मीनिंग कि हम चाहते हैं कि आउटपुट ज़्यादा हो, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो, लेकिन उसके लिए जो हम इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारी एफर्ट्स हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, वो थोड़ा कम अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव करेगी. सो एफिशिएंसी क्या है? इट्स कैन बी डिफाइंड एज समथिंग विद अ रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट प्रोड्यूस्ड एंड इनपुट्स कंज्यूम्ड. सो अगर हम वेस्टेज नहीं करेंगे तो इनपुट्स कम इस्तेमाल होंगे. अगर हम जो है कम रिसोर्सेज से ज़्यादा काम कर पा रहे हैं तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज डूइंग वर्क एफिशिएंटली. और फिर हमने कहा कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, देयर इज़ अ डिफरेंस जो अक्सर टेक्स्ट बुक्स में आपको मिलेगा कि जी एफिशिएंसी इज़ अबाउट डूइंग थिंग्स राइट. इट्स डूइंग थिंग्स राइट कि मतलब आप जो कुछ कर रहे हो वो सही कर रहे हो. इट्स अबाउट डूइंग ऑल द वर्क इन अ राइट मैनर टू गेट what is the result, to do and get the most output by consuming again less inputs. सो मैनेजर क्या करता है, थोड़ा सा वापस जाते हैं. मैनेजमेंट इज़ अबाउट गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स और थ्रू अदर्स, एंड फर्स्ट थिंग इज डूइंग इट एफिशिएंटली, मीनिंग you are consuming less resources and maybe in terms of effort used, but the impact is huge, the impact is great. आप कम efforts के साथ ज़्यादा काम ले पा रहे हो, and that is doing things right. Then effectiveness क्या है? Effectiveness is accomplishing tasks that help fulfill organizational objectives. यानी इफ़ेक्टिवनेस क्या है कि जो हमने काम किया है, काम मुकम्मल कर लेना कोई मेजर इम्पैक्ट हो सकता है, बट मे नॉट बी द राइट थिंग, बट उस काम का सही करने के अलावा वो सही काम परफॉर्म करना भी इम्पॉर्टेंट है कि जो काम हम कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं, क्या उसके लिए उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उनको कोई फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा. सो सही काम करना, दैट मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स इज़ इफ़ेक्टिवनेस. और फिर उसे सही तरीके से कर लेना और कम रिसोर्सेज के साथ करना, दैट इज़ एफिशिएंसी. सो इस स्लाइड पे आपको दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं. इफ़ेक्टिवनेस क्या है? डूइंग द राइट थिंग्स, यानी सही काम करना, यानी जो आप काम कर रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे में है. एंड देन डूइंग इट इन द राइट मैनर, doing the things right by consuming less resources, getting more output, that is efficiency. So what is efficiency? Doing the things right, and effectiveness is doing the right things. अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन को देख लेते हैं. एक और डेफिनेशन है हमारे पास, that what is management? And management is it is about involving people in and basically coordinating and overseeing their work activities so their activities are completed efficiently and effectively. So I repeat, management क्या है? Involving others, दूसरों को involve करना. How? By coordinating and overseeing their work, यानी उनको coordinate करना, उनके साथ उनको देखना कि वो लोग सही काम कर रहे हैं, उनको बताना ये काम आपने करना है, ये इतने टाइम फ्रेम में हमने करना है. फिर आप उसको कोऑर्डिनेट करते हो, उनको बताते हो, उनको हेल्प आउट करते हो, ओवरलुक करते हो, ओवरसी करते हो, एंड देन बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू सी इज़ कि वो काम वो सही तौर पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. बट देन
इस पूरे फ्रेम के अंदर दो चीज़ें इसको हमेशा मॉनिटर करेंगी, कंट्रोल करेंगी, एंड दैट इज़ दैट द वर्क शुड बी डन इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो मैनेजमेंट हमने समझ लिया कि मैनेजमेंट है कोऑर्डिनेटिंग, overseeing the work of others so that they can do it efficiently and effectively. And who is manager then? So manager is again a person who coordinates and oversees the work of other people so that the organizational goals can be accomplished. यानी मैनेजर कौन है कि जो दूसरे लोगों के जो काम वो कर रहे हैं, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं लोग, उनके काम को कोऑर्डिनेट करता है, उनको ओवरसी करता है, उनको मॉनिटर करता है। किस लिए? सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, दे मस्ट बी अकम्प्लिश्ड, उनको अचीव किया जा सके। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर्स। यू सी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर कैन बी लाइक 3 levels ऑफ मैनेजमेंट, और होते हैं, दे आर जनरली देयर। वी हैव द टॉप मैनेजर्स, वी हैव द मिडल मैनेजर्स, एंड देन वी हैव फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। अच्छा, टॉप मैनेजर्स तो समझ में आता है कि जो सीनियर हैं या टॉप डेजिग्नेशंस पे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सीईओज होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए, और इस किस्म के लोग हो गए। अच्छा, मिडिल मैनेजर्स मींस उससे थोड़ा नीचे के लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो उसमें आ जाएंगे। बट फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन से हैं? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो अपनी स्क्रीन्स पे, तो आप देख रहे होगे कि देयर आर सम नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज़ ऑल्सो देयर, यानी वो लोग, वो एम्प्लॉयज़ जो मैनेजर नहीं है, वो मैनेजर की कैडर में नहीं आते, मैनेजर के ग्रुप में नहीं आते। फॉर एग्जांपल असेंबली लाइन पे काम करने वाले लोग, वर्कर्स हैं, लेबर है, सुपरवाइजर्स हैं, बाकी तमाम लोग जो मैनेजेरियल कैडर में नहीं आते, टेक्नीशियंस हैं, सो दे आर आवर नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज़। अच्छा, अब उनको कौन मैनेज करता है? दैट इज़ अवर फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजर्स, यानी मैनेजेरियल कैडर जहाँ से शुरू हो रहा है, दैट इज़ अ फर्स्ट लाइन। और वहाँ पे जो हमारे मैनेजर्स हैं, वो इनिशियली उनका बेसिक काम क्या है इस डायग्राम में? दे आर देयर टू कोऑर्डिनेट विद दी नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज़। ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजर है। यहाँ से जो लोग आगे बढ़ेंगे वो मिडिल मैनेजर्स बनेंगे, जो उससे आगे बढ़ेंगे वो हमारे टॉप मैनेजर्स बनेंगे। सो दिस इज़ हाउ द मैनेजेरियल स्ट्रक्चर इज़। जो एक चीज़ इसमें थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करने वाली है कि इट्स अ काइंड ऑफ पिरामिड। मैंने इस डायग्राम को स्क्वायर बॉक्स नहीं बनाया, मैंने इसको कोई सर्कल नहीं बनाया, मैंने इसको एक पिरामिड की शेप दी है, एक ट्रायंगल की शेप दी है। वो इस वजह से क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो नीचे ट्रायंगल का बेस हमेशा ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे ये ट्रायंगल या पिरामिड ऊपर की तरफ जा रहा है, जो साइज़ है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी तादाद हमेशा ज़्यादा होती है। उसके मुकाबले में फ़र्स्ट लाइन मैनेजर्स कम होते हैं, फ़र्स्ट लाइन मैनेजर्स के मुकाबले में मिडिल मैनेजर्स और कम होते हैं, और मिडिल मैनेजर्स के मुकाबले में जो टॉप मैनेजर्स हैं वो हमेशा और कम होते हैं। सो हायरार्की किस तरह बनती है? हायरार्की या स्ट्रक्चर हमेशा इस तरह ही डेवलप होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर वर्कर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन सीईओ और टॉप लेवल के मैनेजर्स हमेशा आपको कम ही मिलेंगे, कम होते हैं, तादाद में कम होते हैं। सो दैट इज़ वाई द डायग्राम शोज़ यू अ पिरामिड। सो आई रिपीट अगेन, व्हेन यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मैनेजर्स, सो टाइप्स ऑफ मैनेजर्स कौन कौन से हैं? वी हैव अ टॉप मैनेजर, वी हैव अ मिडिल मैनेजर, एंड वी हैव अ फर्स्ट लाइन मैनेजर। ये मैनेजर्स हैं और टाइप्स ऑफ मैनेजर्स हैं। और फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है वो किसको मैनेज कर रहा होता है? वो मैनेज कर रहा होता है नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज़ को। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि रिपोर्टिंग कैसे होती है, यानी कौन किसको आंसरेबल है। तो इसी तरह
फर्स्ट लाइन मैनेजर किसको आंसरेबल है डायरेक्टली? वैसे तो टॉप मैनेजर भी उसको बुला के पूछ सकता है, रिपोर्ट ले सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है, बट जनरली जो हायरार्की या स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो ये है कि फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है ही विल रिपोर्ट एंड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम द मिडल मैनेजर. Middle manager will report to and get orders from the top manager. So ये स्ट्रक्चर है. डिसीजन मेकिंग हम आगे जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग किसका काम है, रिपोर्ट करना किसका काम है, इंफॉर्मेशन देना किसका काम है. तो वो डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट होते हैं and we'll talk about it in this lecture or chapter in a minute. Okay, so let's talk about the first line managers. अब थोड़े से इनकी हम प्रॉपर्टीज़ कह लें या फीचर्स कह लें, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, हम वो देखेंगे. सो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स क्या करते हैं या क्या उनके बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? दे मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़. यानी कि इनका पहला काम क्या है कि जो नए एम्प्लॉयज़ एंट्री लेवल पे यानी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू हायरिंग के तौर पे किसी भी कैडर में एंटर हो रहे हैं, स्पेशली नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ के केस में, सो दे आर देयर टू मैनेज दैम. उनको उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना और उनको गाइड करना और उनकी परफॉर्मेंस की रिपोर्टिंग करना, ऊपर आगे रिपोर्ट्स उसकी फॉरवर्ड करना. दैट्स बेसिकली द फर्स्ट टास्क. सो पहली चीज़ क्या होगी? मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़. नंबर 2, इट encourages, they are there to encourage, monitor and reward the performance of वर्कर्स. मैनेजर्स की बात नहीं हम कर रहे. ये किसकी परफॉर्मेंस एवेलुएट करेंगे, किसको रिवॉर्ड देंगे, किसको जो है आगे उनकी इन्फॉर्म को इंकरेज करेंगे. दे विल बी इंकरेजिंग दी वर्कर्स, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ को. सो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस एवेलुएट करना, उनकी अप्रेजल्स करना, ये हम कुछ वर्ड्स आगे भी पढ़ेंगे. तो इवैल्यूएशन करना उनकी कि वो काम सही कर रहे हैं या उन्होंने इतने अरसे में काम सही किया है कि नहीं किया, ये कौन करेगा? फर्स्ट लाइन मैनेजर. टीच एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़ हाउ टू डू देयर जॉब. जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, नए वर्कर्स आ रहे हैं, उनको बताना कि आप अपने जो काम हैं वो कैसे करेंगे, उनको गाइड करना, उनको मॉनिटर करना. And then make detailed schedules and operating plans. बहुत important point. थोड़ा सा आपने कभी सुना भी होगा या नहीं सुना, but there are some books or textbooks says operations managers. Operations क्या है? किसी भी organization के operations क्या होते हैं? एक गाड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री है, उसके ऑपरेशंस क्या हैं? टू मैन्युफैक्चर अ कार एंड दैट मे बी डूइंग, दे आर डूइंग ऑब्वियसली ऑन एन असेंबली लाइन. सो अगर एक गाड़ी बन रही है, उसको वर्कर्स या लेबर बना रहे हैं, उनको कौन मैनेज कर रहा होगा? फर्स्ट लाइन मैनेजर. और फर्स्ट लाइन मैनेजर पूरे स्केजुअल्स बनाएगा कि जी पहला स्टेज ये है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट टास्क, ये पहला ग्रुप ऑफ वर्कर्स है, ये काम करेंगे, चेसिस पे काम करेंगे, ये लोग इंजन पे काम करेंगे, ये लोग बाकी फिक्सर उस पे फिटिंग्स पे काम करेंगे. सो बाकी जो चीज़ें हैं उन पे कौन कौन काम करेगा, किस तरह काम होगा, कितनी देर में कौन सा काम मुकम्मल होना है. सो इसी तरीके से अगर बैंक का फ्लोर है तो वहाँ पे जो ऑपरेशंस मैनेजर होगा वो ये कहेगा कि जी क्यू में लोग लगे हुए हैं, कितने टाइम में कैशियर ने किसको डील करना है, किस अगर क्या मसला हो तो कौन से डेस्क पे जाना है, प्रॉपर्ली गाइड हो रहे हैं वो लोग कि नहीं हो रहे हैं. सो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि स्केजुल्स बनाना और ऑपरेटिंग प्लान्स बनाना कि जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं, हम कोई चीज़ बना रहे हैं या कोई प्रोडक्ट गुड्स वी आर प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई हम सर्विसेज अपनी ऑफ़र कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं और क्या कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, ये कौन डिसाइड करता है? अगेन द फर्स्ट लाइन मैनेजर. सो हु इज़ अ फर्स्ट लाइन मैनेजर? अ पर्सन
who directly manages the non-managerial employees, उनकी परफॉर्मेंस को evaluate करना, उनको मॉनिटर करना, उनको इनकरेज करना, उनके काम के प्लान्स बनाना, स्केड्यूल्स बनाना, ये सब काम जो है दे आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. देन लेट्स सी व्हाट आर द रोल्स ऑफ मिडिल मैनेजर्स. मिडिल मैनेजर्स क्या करता है? प्लान एंड एलोकेट रिसोर्सेज टू मीट ऑब्जेक्टिव्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मिडिल मैनेजर जो है इज बेसिकली अ काइंड ऑफ फैसिलिटेटर. इट्स अ काइंड ऑफ लिंक बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. मिडिल मैनेजर का रोल क्या है? एक फैसिलिटेटर का है, एक लाइजनिंग का रोल है उसका, एक कोऑर्डिनेशन का रोल है. किसके बीच में? बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. अच्छा, अब अगर ऑपरेशनली फर्स्ट लाइन मैनेजर को कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, उसको कोई रिसोर्सेज चाहिए, तो वो किससे मांगेगा? मिडिल मैनेजर से. मिडिल मैनेजर का ये काम है कि जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वो मिडिल मैनेजर जो है वो अरेंज करेगा और प्रोवाइड करेगा. फिर कोऑर्डिनेट एंड लिंक ग्रुप्स, डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर एक से ज़्यादा सेक्शन होता है, डिविजन्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं. उन तमाम उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिविजन्स हैं उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन पैदा करना, उनके दरमियान एक कोहेरेंस पैदा करना और उनके दरमियान जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखना, दैट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिडिल मैनेजर. थर्ड पॉइंट क्या है? मॉनिटर एंड मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ सब यूनिट्स एंड मैनेजर्स हु रिपोर्ट टू दैम. अच्छा, जैसे हमने कहा था कि जी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स किसकी मॉनिटरिंग करेगा, किसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करेगा? जो उससे नीचे नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी. इसी तरीके से मिडिल मैनेजर के अंडर कौन आता है? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. तो मिडिल मैनेजर किसकी अप्रेजल करेगा, किसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करेगा? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की. और उसके अलावा कोई और सब ग्रुप्स हैं तो उनकी भी मैनेजमेंट कौन करेगा, उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन और मॉनिटरिंग कौन करेगा? मिडिल मैनेजर. फोर्थ पॉइंट क्या है? इम्प्लीमेंट चेंजेस और स्ट्रैटेजीज जनरेटेड बाय टॉप मैनेजर्स. जैसे कि मैंने इस मिडिल मैनेजर्स के रोल बताते हुए शुरू में आपसे कहा कि मिडिल मैनेजर का रोल एक फैसिलिटेटर का है, एक कोऑर्डिनेशन का रोल है, एक लाइजनिंग का रोल है उसका. किसके बीच में? टॉप मैनेजर के और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के बीच में. तो जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ने लिया है उसको इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली कौन करेगा? प्रैक्टिकली तो फर्स्ट लाइन मैनेजर करेगा, क्योंकि वो तो सर्विस फ्लोर पे खड़ा है, वो असेंबली लाइंस पे खड़ा है और ऑर्डर्स दे रहा है किनको? नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, टेक्नीशियंस को, लेबर को. लेकिन उस तक ये मैसेज कौन पहुंचाएगा कि जी टॉप मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लिया है? तो फर्स्ट लाइन मैनेजर तक ये डिसीजन पहुंचाएगा मिडिल मैनेजर. मिडिल मैनेजर ने जो भी इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट से फर्स्ट लाइन मैनेजर को जानी है वो भी मिडिल मैनेजर आगे तक लेके जाएगा. और फिर कोई अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ने ऑब्जर्व की है या वो रिपोर्ट करना चाहते हैं टॉप मैनेजमेंट को, तो वो भी पहले मिडिल मैनेजमेंट को देंगे और मिडिल मैनेजमेंट फिर उसको आगे कन्वे करेगी. तो मिडिल मैनेजमेंट का रोल क्या है? अगेन इट्स अ लिंक बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. नाउ लेट्स सी कि टॉप मैनेजर्स का फिर क्या रोल है और क्या काम ये लोग करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग अ कॉन्टेक्स्ट फॉर चेंज. चेंज क्या होता है? थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे, चेंज मैनेजमेंट का एक सब यूनिट आएगा तो उसमें हम देखेंगे. बट चेंज क्या है? चेंज है कि यू वांट टू इम्प्रूव अपॉन द करंट सिचुएशन, यानी जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसको आप बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं. जो चीज़ प्रिवेलिंग होती है और अगर आप उसको एज इट इज़ ही रहने देंगे तो उसको हम एक वर्ड यूज़ करते हैं स्टेटस को,
कि जी जो चीज़ सी वो एज इट इज़ ही है और इसी तरह चल रहा है, दैट इज़ अ स्टेटस को। बट चेंज क्या है? चेंज है इम्प्रूवमेंट, चेंज है डूइंग द थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर। वाई? एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू डू व्हाट? अब एज अ मैनेजर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अचीव करना चाह रहे हो? यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल्स सेट किए हैं उसको अचीव करने के लिए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट चेंज, चेंज इज दैट यू वांट टू इम्प्रूव अपॉन द करंट सिचुएशन, और उसके लिए कौन सोचेगा, कौन डिसीजन लेगा? टॉप मैनेजर। Top manager is also called to be someone who is there to give long-term direction to the organization. कि जी आज हम यहाँ पे हैं, अगले 5 सालों में हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लेके जाना है। सो ये विजन, ये थिंकिंग, ये प्लानिंग, ये कौन करेगा? टॉप मैनेजर। सो प्लानिंग का जो रोल है, जो मेजर डिसीजन मेकिंग का रोल है, वो हमेशा किसके पास होता है? टॉप मैनेजर के पास। वो रोल यूज़ करने के बाद वो जो भी डिसीजन लेगा वो आगे किसको फॉरवर्ड करेगा? मिडिल मैनेजर को। मिडिल मैनेजर क्या करेगा? उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करने के लिए ऑर्डर्स किसको देगा, किसको इन्फॉर्म करेगा? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को। और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किसके थ्रू करवाते हैं? नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ के थ्रू। यानी ये चीज़ हमने अब ऐसे बनानी है, ये चीज़ हमने इस तरह करनी है, हम कस्टमर्स को इस तरह मिलेंगे, अब हम ये स्टेप्स करेंगे, स्टेजेस होंगे हमारे। अगर कोई बैंक में आता है, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो हम उसको इस तरह ग्रीट करेंगे, ये काम इस तरह होंगे। तो ये सारी चीज़ें डिसीजन किसने लिया? टॉप मैनेजमेंट ने। एक्चुअल में उसको पास ऑन किसने किया डिसीजन को आगे तक? मिडिल मैनेजर ने। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? फर्स्ट लाइन मैनेजर। डेवलपिंग कमिटमेंट एंड ओनरशिप इन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के दरमियान एक कमिटमेंट पैदा करना, यानी कि आप उनको इस तरह मोटिवेट रखो कि दे ऑलवेज थिंक, दे ऑलवेज वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर्स हों, मैनेजर्स हों, कोई भी हों, आपने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है बीइंग अ टॉप मैनेजर कि हर बंदा कमिटेड हो, मोटिवेटेड हो। बिकॉज जब आप मोटिवेटेड होंगे, आप कमिटेड होंगे, आप अपनी फुल एफर्ट देंगे और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो जल्दी और अच्छे तरीके से अचीव हो सकेंगे। Then creating a positive organizational culture through language and action. Culture एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? लोग जो उसमें हैं वो कल्चर बनाते हैं। मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो किस किस्म के एक दूसरे के साथ ख्यालात शेयर करते हैं, किस तरह की बात करते हैं, एक दूसरों को इज़्ज़त देते हैं, नहीं देते हैं, अच्छी तरीके से किसी को बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं, टीम वर्क है कि नहीं है, लोग ज़्यादा घुल मिल के रहते हैं कि अलग-अलग लोग रहते हैं। सो कल्चर की कई डायमेंशंस हैं, वो हम आगे भी देखेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव कल्चर डेवलप करना कि जिसमें सारे लोग एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहें, काम करें, एक पॉजिटिव एनर्जी हो, एक मोटिवेशन हो, उसको डेवलप करना भी किसका काम है? टॉप मैनेजर का। और फिर ऑब्वियसली मॉनिटरिंग देयर बिजनेस एनवायरनमेंट्स। मैंने जैसे शुरू में अभी इस टॉप मैनेजर्स के रोल्स बताते हुए बोला कि व्हेन यू टॉक अबाउट टॉप मैनेजमेंट का रोल क्या है? लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देना ऑर्गेनाइजेशन को कि जी आज हम यहाँ पे हैं, अगले 5 सालों में हम कहाँ पे होंगे, क्या ऑर्गेनाइजेशन को हमने कहाँ तक लेके जाना है, क्या हमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। सो उन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना, उन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वर्किंग करना, ये डिसाइड करना कि ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये कौन डिसाइड करता है? अपनी इन्वायरमेंट को, अपने आसपास इन्वायरमेंट में कौन है? आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, आपके सप्लायर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं। सो ये सब लोग जो हैं ये आपके इन्वायरमेंट में हैं।
इनमें अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए, सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको आइडेंटिफाई टाइम से पहले करना और उसको ऊपर वर्किंग करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके, ये किसका काम है? अगेन दी रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। नाउ मैंने जैसे कोर्स डिस्क्रिप्शन बताते हुए कहा था कि जी देयर आर 4 मेजर एरियाज और मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजर और मैनेजमेंट, एंड these are what, looking at the slide, these are planning, organizing, leading and controlling. So managers के function क्या हैं? Yeah, management is all about what? It's about planning, organizing, leading and controlling. So देखते हैं कि प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं और ऑर्गेनाइजिंग में और लीडिंग में और कंट्रोलिंग में। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज़ डिटर्मिनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड मीन्स फॉर अचीविंग दैम। यानी ये देखना कि ये डिसाइड करना, ये डिटर्मिन करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं और हम उन गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, वो क्या स्टेप्स हम लेंगे कि हम इन गोल्स को अचीव कर सकें। दैट इज़ प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? डिसाइडिंग वेयर डिसीजंस विल बी मेड, हु विल डू व्हाट जॉब्स एंड टास्क्स एंड हु विल वर्क फॉर whom। थोड़ा सा अगर आप इन तीनों डेफिनेशंस को देखो तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर डेवलप करने की कि हायरार्की क्या होगी, कौन टॉप मैनेजमेंट में फॉल करेगा, कौन मिडिल मैनेजमेंट में आएगा, कौन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में आएगा, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को वर्कर्स या कौन रिपोर्ट कर रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा कौन क्या काम करेगा, टॉप मैनेजमेंट में है तो उसका काम क्या है? हमने जैसे अभी कहा कि टू थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, डेवलप कमिटमेंट, मोटिवेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो कौन क्या काम करेगा, हु विल वर्क फॉर whom, रिपोर्टिंग कौन किसको करेगा। तो दैट इज़ वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग, कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर के ऊपर डेवलप कर रहे हैं कि जी हमारे पास जो लोग हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो नॉन मैनेजरियल स्टाफ है, इसमें रिपोर्टिंग मैकेनिज़म्स क्या होंगे, मिडिल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आ रहे हैं, वो मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वो मिडिल मैनेजर है, वो टॉप मैनेजर है, क्या है। सो एक किस्म का स्ट्रक्चर बनाना, अपने आप को अरेंज करना किसी स्ट्रक्चर में, एक हायरार्की डेवलप करना, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। लीडिंग क्या है? लीडिंग मीन्स वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल टू अकम्प्लिश गोल्स, यानी लोगों के साथ काम करना, लोगों से काम करवाना, लेकिन किस तरह, किस लिए? बिकॉज वी वांट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अच्छा, एक अक्सर बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला यूज़ होता है कि इज़ मैनेजर अ लीडर? यस, मैनेजर इज़ अ लीडर। वाई? क्योंकि मैनेजर का एक रोल लीडिंग भी है, तो मैनेजर लीडर होता है। और क्या लीडर मैनेजर बन सकता है? सो बन तो सकता है, लेकिन नॉट एवरी लीडर इज़ अ मैनेजर, बट येस एवरी मैनेजर इज़ अ लीडर। हर मैनेजर लीडर बन सकता है और होता है, लेकिन हर लीडर मैनेजर नहीं होता, बिकॉज मैनेजमेंट इज़ अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग फिर क्या हुआ? चौथा जो पॉइंट है, चौथा जो फंक्शन है, देखिए कंट्रोलिंग कहते हैं कि आप मॉनिटर करो, यू वांट टू मॉनिटर। फॉर एग्जांपल द स्लाइड सेज मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन नीडेड। अच्छा, मेरे नज़दीक कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग है कि आप पहले कुछ स्टैंडर्ड सेट करो कि जी ये काम हमने करना है, ये काम हमने सही किया तो अच्छा होगा, नहीं किया तो ये अच्छा और बुरा या सही या गलत
कोई तो पैरामीटर होगा, कोई तो क्राइटेरिया होगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी एक कैशियर जो है वो 3 मिनट अगर लेता है किसी क्लाइंट को डील करने में, उसको उसका चेक कैश करने में, तो ये एक अच्छा टाइम स्केल है। अगर वो 5 मिनट ले रहा है तो ज़्यादा ले रहा है, अगर वो 10 मिनट ले रहा है तो बुरा है, 3 से कम में कर रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो हर वर्कर की, हर मैनेजर की, हर लेबर की आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हो उसकी परफॉर्मेंस को, बट अगेंस्ट सम सेट स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अब अगर वो परफॉर्मेंस जो है वो मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं एज अ मैनेजर, और अगर वो परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द रिक्वायर्ड मार्क है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस नीचे जा रही है किसी ग्रुप की, किसी वर्कर की, या किसी एक कंपोनेंट की, डिपार्टमेंट की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू टेक सम करेक्टिव मेजर्स, यानी आपको कुछ ऐसे स्टेप्स करने पड़ेंगे जिससे परफॉर्मेंस जो है उस ग्रुप की, उस वर्कर की, उस इंडिविजुअल की, या उस ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट की इम्प्रूव हो सके। सो मॉनिटरिंग क्या है? सॉरी, व्हाट इज कंट्रोलिंग? इट्स अबाउट मॉनिटरिंग दी overall performance against some standards, against some benchmarks, and take corrective actions if required. अगर ज़रूरत पड़ती है, परफॉर्मेंस नीचे है, कम है, तो आप उस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सको। Now, हेनरी मिंट्सबर्ग ने in 1973 in his work in managerial area defined 10 रोल्स। अभी तो हमने फंक्शंस देख लिए, बट हेनरी मिंट्सबर्ग ने 1973 में 10 रोल्स ऑफ मैनेजर्स जो है वो डिफाइन किए थे। अच्छा, अब ये जो 10 रोल्स हैं, इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हो। पहले ग्रुप का नाम है इंफॉर्मेशनल, दैट कि हर मैनेजर का कोई ना कोई रोल जो होता है वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। अब इंफॉर्मेशनल जो रोल है, इसके अंदर हमारे पास 3 सब रोल्स हैं, एज अ मॉनिटर, एज अ डिसिमिनेटर, एंड एज अ स्पोक्स पर्सन। अच्छा, व्हाट इज मॉनिटर? मॉनिटर क्या है? इट इज़ टू सीक एंड एक्वायर वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि आप मॉनिटर करते हो, ढूंढते रहते हो कि आपको अपने जिस डिपार्टमेंट में है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, उसका जो काम है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। आप उसको नोट डाउन करते हो, रिकॉर्ड करते हो फॉर लेटर यूज़। एग्जांपल्स मैंने दी हुई, अगर आप स्लाइड पे देख रहे हो कि स्कैन एंड रीड द प्रेस, अखबार में पढ़ते हो, पीरियोडिकल्स पढ़ते हो, रिपोर्ट्स पढ़ते हो, मीटिंग्स अटेंड करते हो, सेमिनार्स अटेंड करते हो, मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, लोगों से कॉन्टैक्ट्स मेंटेन करते हो, बट किस लिए? टू मॉनिटर, एंड मॉनिटर व्हाट? टू सीक एंड फाइंड आउट व्हाट आर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। सो पहला ग्रुप क्या है एज अ मैनेजेरियल रोल? इंफॉर्मेशनल। और इंफॉर्मेशनल के अंदर पहला जो रोल है वो क्या है? एज अ मॉनिटर। सेकेंड रोल इज डिसिमिनेटर। डिसिमिनेटर कहते हैं इंफॉर्मेशन फैलाने वाला, डिसिमिनेट करने वाला, दूसरों तक पहुंचाने वाला। तो पहला रोल तो आपका था कि इंफॉर्मेशन को ढूंढना, नज़र रखना कि कहाँ आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर कई दफ़ा आपको कुछ इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी पड़ती है, एंड देयर योर रोल इज़ ऑफ टू कम्युनिकेटर, डिसिमिनेटर। किस चीज़ का? टू कम्युनिकेट एंड डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन टू अदर्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। समटाइम्स बाहर भी आपको देना पड़ता है, बट जब आपने इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचानी होती है तो फिर आपका रोल डिसिमिनेटर का नहीं है, आपको हम कहेंगे स्पोक्स पर्सन। इंफॉर्मेशन गैदर करने वाला, ढूंढने वाला मॉनिटर कहलाता है। उस इंफॉर्मेशन को विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन लोगों तक पहुंचाने वाला कहलाता है डिसिमिनेटर। और ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों तक पहुंचाने वाला कौन होता है? दैट पर्सन इज कॉल्ड दी स्पोक्स पर्सन। अच्छा,
अब डिसिमिनेट आप कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिपोर्ट आप इंफॉर्मेशन दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? थ्रू मेमोस, थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशनल ब्रोशर, लेटर्स, मे बी आपने एक नोटिस बोर्ड है उस पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन लगा दी है जो आते जाते लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। सो डिसिमिनेटर अगेन कौन है? जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों तक पहुंचाता है। अ पर्सन हु कम्युनिकेट्स एंड डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और स्पोक्स पर्सन कौन है? द पर्सन हु डिसिमिनेट इट टू द पर्सन्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आप इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक जो आपकी इंफॉर्मेशन है? यू यूज़ डिफरेंट मैकेनिज़म्स सच एज आप रिपोर्ट्स के थ्रू, किसी इंटरव्यू के थ्रू, कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं आप, कॉन्फ्रेंस में आप अपना ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पेपर पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल प्रेजेंट कर रहे हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट मैनेजरियल रोल्स एज एन इंफॉर्मेशनल रोल, तो उसके अंदर जैसे मैंने कहा देयर आर 3 रोल्स। मॉनिटर जो इंफॉर्मेशन सीख करता है, ढूंढता है, which is related to your organization. Then disseminator, your role to disseminate or communicate the information within the organization. And then the third role is of a spokesperson, यानी आप information तो communicate कर रहे हो which is related to your organization but to people who are outside your organization. So पहला हमने रोल देखा, ब्रॉड ग्रुप देखा इंफॉर्मेशनल, उसमें 3 चीज़ें देखी, मॉनिटर, डिसिमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। सेकेंड ग्रुप ऑफ रोल्स क्या है? विच वी कॉल एज इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब है सोशलाइजेशन, लोगों से कम्युनिकेट करने की कैपेबिलिटी आपकी। हाउ यू टॉक टू द पीपल, हाउ यू मीट एंड ग्रीट पीपल। और उसके अंदर आपका जो लोगों के साथ रिलेशनशिप है उसमें 3 आपके सब रोल्स हैं या सब कैटेगरीज हैं। पहला है फिगर हेड, नंबर 2 इज़ लीडर एंड नंबर 3 इज़ लाइजन। नाउ हु इज़ अ फिगर हेड? फिगर हेड होता है सिंबॉलिक पर्सन। सिंबॉलिक मीन्स के अगर आप कहते हो कि ऑर्गेनाइजेशन XYZ तो आपके फ़ौरन जहन में आएगा अच्छा दैट पर्सन हु इज़ अ CEO ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो फिगर हेड कौन है? यानी वो पर्सन जो कि ऑर्गेनाइजेशन की लीगल ड्यूटीज़ पूरी करता है। कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई बाहर के लोग विज़िट करने आ रहे हैं तो ही इज़ अ टॉप पर्सन के जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी जाके। बाहर कोई मीटिंग्स हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेस हैं, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, तो जब भी उस ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम करना है तो वो बंदा, वो पर्सन वहाँ पे जाके वो काम परफॉर्म करेगा। सो फिगर हेड मीन्स whenever you think about that organization XYZ, you think of that person because he is there to represent that organization through different ceremonies, conference proceedings and everything. And then your role as a leader means you are going to have a relationship in which you are trying to motivate others, you are trying to persuade others. For what reason? जैसे हमने शुरू में कहा, to achieve the organizational goals. So you direct and motivate your subordinates, select and train your employees, and you are acting as a leader. मैंने जैसे शुरू में कहा कि every manager is a leader, but not every leader is a manager. So manager जो होता है उसका एक काम leader का भी है, और leader is about what? To have continuous interaction with all subordinates, यानी जब वो ऑर्गेनाइजेशन में जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोग उसको पहचानते भी हों, जानते भी हों कि जी ही इज़ आवर मेन पर्सन, और फिर उसके साथ उनका कोऑर्डिनेशन भी हो और वो उनको मॉनिटर भी करे और उनको मोटिवेट करे, परसुएड करे, उनको गाइड करे, और उनके लिए अगर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, थिंक इन द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन कि जी अगर
ये लोग मोटिवेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, उनको ट्रेनिंग देना, उनको नए स्किल्स सिखाना भी एक किस्म की मोटिवेशन होती है। तीसरा जो सब कैटेगरी है इसके अंदर, दैट इज लाइजनिंग। अब लाइजनिंग क्या है? लाइजनिंग मीन्स टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट्स, to work as a contact rather between your organization and the outside organization or outside world। यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जब किसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन या इदारे के साथ या किसी बाहर के मीडिया के साथ या कोऑर्डिनेट करना है, तो उस कोऑर्डिनेशन को कौन करेगा? you being the manager, but your role in that area would be as of listening। listening है your coordination with the outside environment where you are trying to represent your organization at that place। so that you do through what? business correspondence है, आप letters लिखते हैं दूसरी organizations को, आप meetings में जाते हैं, दूसरे divisions और organizations में जाते हैं। so there your role is of listening। so इस कैटेगरी में जिसमें आपका रोल जो है वो इंटरपर्सनल है, यहाँ पे आपके 3 सब रोल्स हैं। एज अ फिगर हेड, सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2 एज अ लीडर वेयर यू आर ट्राइंग टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। एंड नंबर 3 एज अ लाइजनिंग पर्सन, जो लाइजन करता है, लिंक इस्टेब्लिश करता है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस एंड। ऑलराइट जी, नाउ अब हम देखते हैं कि थर्ड रोल कैटेगरी क्या है। जैसे कि हेनरी मिट्सबर्ग ने 3 मेजर कैटेगरीज डिफ़ाइन की। पहला है एज अ रोल ऑफ इंफॉर्मेशनल रोल है, नंबर 2 इज़ इंटरपर्सनल रोल, और अब जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज़ द डिसीजनल रोल। और अब डिसीजनल रोल के अंदर हम देख रहे हैं कि देयर आर 4 सब रोल्स। फर्स्ट वन इज़ एज एन एंटरप्रेन्योर, number 2 as a disturbance handler, number 3 as a resource allocator, and number 4 as a negotiator। entrepreneur कौन होता है? a person who always tries to look for new ideas, new products, new services, innovative। यानी कि एक ऐसा आइडिया जो एक प्रोडक्ट में, एक सर्विस में ट्रांसफॉर्म हो सके और वो फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यूज़ लेके आए, प्रोडक्ट सर्विस, ऑर्गेनाइजेशन उससे पहचानी जाए और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। तो व्हेन यू आर डिसाइडिंग कि जी इट्स अ गुड आइडिया और इट्स अ गुड सर्विस विच वी बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑफर, देन योर रोल इज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। और इम्प्लीमेंट इनोवेशंस है, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर है, एग्जाम्पल्स दी हैं मैंने। देन योर रोल कैन बी ऑफ अ डिस्टर्बेंस हैंडलर। यानी अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है कि जिस तरह काम नॉर्मल वे में होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में उस तरह नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हो सकता है वर्कर्स में आपस में कोई डिस्टर्बेंस आ रही हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, या मैनेजर के सेम लेवल पे डिफरेंट मैनेजर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, तो उस प्रॉब्लम को, उस डिस्टर्बेंस को आपको हैंडल करना है। सो योर रोल विल बी ऑफ अ डिस्टर्बेंस हैंडलर। और देयर यू ट्राई टू डील विद द डिस्प्यूट्स, और डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का हमेशा कहते हैं कि द बेस्ट वे इज़ टू टॉक विद द अदर्स, टू कम्युनिकेट। और यही देखा गया है कि डिफरेंट स्टडीज़ में कि व्हेन एवर यू कम्युनिकेट, व्हेन एवर यू टॉक विद द अदर्स, सो डिस्टर्बेंसेस कैन बी हैंडल्ड, द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। अच्छा, थर्ड रोल आपका है एज अ रिसोर्स एलोकेटर। आपको डिसीजन किन किन चीज़ों पे लेना है, इसमें इस बेसिक कैटेगरी के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमने किन किन चीज़ों पे डिसीजन लेना होता है। जैसे मैंने पहले कहा, एज एन एंटरप्रेन्योर कि वेदर दिस प्रोडक्ट और सर्विस इज़ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, हमें इस पे काम करना चाहिए कि इस आइडिया पे कि नहीं करना चाहिए।
एज डिस्टर्बेंस हैंडलर, कि अगर कोई डिस्टर्बेंस आ गई तो उसको हमने कैसे हैंडल करना है, वो डिसीजन भी आपने लेना है। फिर आप जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी चीज़ को कंप्लीट करने की बात करते हो, किसी प्रोजेक्ट को, किसी भी काम को, सो यू नीड सम रिसोर्सेज। अच्छा, अब रिसोर्सेज की बात दोबारा आई है, थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। इसी रिसोर्सेज कैन बी ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जो वर्कर्स, लेबर, मैनेजर्स आपको चाहिए हैं किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए। अच्छा, देन सेकेंड टाइप ऑफ रिसोर्स कैन बी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि आपने पूरा जो काम करना है उसके लिए आपको फाइनेंसेस चाहिए, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। सो रिसोर्सेज फाइनेंशियल भी होते हैं। फिर कई दफ़ा कोई टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व हो सकती है, कोई गाड़ी बनानी है उसके लिए कोई मशीनरी चाहिए। अगर आप एक किसी फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से आपने मिलना है, लोगों ने आपसे आके मिलना है, तो यू नीड सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस जिसमें आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकें। ग्रीट करने के लिए आपके कोई जगह होनी चाहिए, कोई मशीनरी, कोई आइटम्स, कोई प्रिंटर, कोई कंप्यूटर, कोई माइक, कोई साउंड सिस्टम, ये डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। सो ये सब क्या है? टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिसोर्सेज, सिर्फ ये तीन नहीं है, और भी रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन तीन रिसोर्सेज हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में इन्वॉल्व हो जाएंगे: ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। सो रिसोर्स एलोकेटर क्या है? इट्स बेसिकली टेकिंग अ डिसीजन that what resources are required and how we are going to arrange for it, whether we are going to provide them or not, whether they are required, not required, ज़्यादा required हैं, कम मांगे गए हैं, कम मांग रहे हैं, ज़्यादा provide करने चाहिए। So your role as a resource allocator is again falling under the main category of decisional role। और 10th सब रोल और फाइनल इज द नेगोशिएटर। यू सी, नेगोशिएशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैनेजमेंट का। जब कभी, अच्छा, नेगोशिएशन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इट्स नॉट ऑलवेज इन द केस कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो और आपको नेगोशिएट करना पड़े। सो नेगोशिएशन कैन बी वेयर हम ये देखना चाहते हैं, हम डील कर रहे हैं बाहर के लोगों से, किसी बिजनेस डील से रिलेटेड। सो वहाँ पे आप हमेशा ये चाहते हो एज अ मैनेजर दैट योर ऑर्गेनाइजेशन शुड विन। सो नेगोशिएट करने का कई चीज़ें इसमें आ जाती हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे। विन सिचुएशन है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट करना चाहते हो, बेस्ट अचीव करना चाहते हो कि ये जो हम नेगोशिएशन कर रहे हैं अपने सप्लायर्स के साथ, अपने वेंडर्स के साथ, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ, इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आप बेस्ट पार्ट ऑफ द पाई जो है वो लेके दो। और नेगोशिएशन में समटाइम्स यू नीड टू लूज समथिंग इन ऑर्डर टू गेन अ ह्यूज चंक। तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे भी। सो 3 रोल्स, मेन कैटेगरीज हेनरी मिंट्सबर्ग की मैनेजरियल रोल्स की कौन कौन सी हैं? इंफॉर्मेशनल, इंटरपर्सनल एंड डिसीजनल। और फिर हमने इनके अंदर सब रोल्स भी देखे। नाउ लेट्स सी कि व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ मैनेजर, यानी कौन कौन से स्किल्स अगर एक मैनेजर के पास हों तो वो एक सक्सेसफुल मैनेजर बन जाएगा या बन सकेगा। और कौन कौन से रोल्स हैं? वी हैव टू हैव टेक्निकल स्किल्स, वी नीड टू हैव ह्यूमन स्किल्स, वी नीड टू हैव कॉन्सेप्चुअल स्किल्स एंड वी नीड टू हैव मोटिवेशन टू चेंज और मैनेज। सो चार स्किल्स कौन कौन से हैं? वी आई रिपीट अगेन: टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, conceptual skills and motivation for managing or motivation to manage. Let's see कि ये roles या skills जो हैं
जो हमें रिक्वायर्ड हैं डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करने के लिए मैनेजमेंट के, उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। टेक्निकल स्किल्स में क्या आता है? द नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन अ स्पेसिफिक फील्ड। फॉर एग्जांपल, आप मार्केटिंग मैनेजर हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो टेक्निकल स्किल्स क्या होंगे आपके? यू नीड टू नो हाउ मार्केटिंग इज़ डन, कि मार्केटिंग की कैसे जाती है, मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एडवर्टाइजिंग कैसे की जाएगी, प्रमोशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं, अखबार में जाना है, हमने मीडिया पे जाना है, डिफरेंट प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। सो ये सारी चीज़ें जानना एक मार्केटिंग मैनेजर के लिए ज़रूरी है, और ये उसके बेसिक स्किल्स हैं। अगर ये चीज़ें उसके पास नहीं होंगी, ये नॉलेज उसके पास नहीं होगा, तो वो टेक्निकल स्किल्स में लैक करेगा। एक अकाउंटेंट है और वो काम कर रहा है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसको एक अकाउंट्स मैनेजर जो है वो देख रहा है। तो एक अकाउंट्स मैनेजर जो है उसके पास क्या स्किल्स होने चाहिए? दैट ही मस्ट नो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, बैंक स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, बनाई कैसे जाती है, और फिर उनको ट्रांसफॉर्म करना, उनको एनालिसिस करना भी आएगा, जाहिर बात है। तो ये स्किल्स जो हैं ये टेक्निकल स्किल्स हैं, यानी जिस चीज़ के आप मैनेजर हो, you need to know what are the skills required for that very job. Number 2, human skills. Human skills क्या है कि you need to have the ability to work well with the other people. यानी कि मैं अगर एक मैनेजर हूँ तो मेरे में ह्यूमन स्किल्स होने चाहिए कि मैं दूसरे लोगों से अच्छी तरह, बेहतर अंदाज में कम्युनिकेट कर सकूं, अपनी बात कम्युनिकेट कर सकूं, उनकी बात सुन सकूं, लोग मेरे से बात करने में, मुझसे मिलने में, मुझसे इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ शेयर करने में हिचकिचाएं ना, दूर ना हटें। दे मस्ट बी एट ईज़ विद मी, सो आई नीड टू बी एबल टू कम्युनिकेट वेल विद दैम। सो मेरे में ये ह्यूमन स्किल्स होने चाहिए, लोगों से मिलने के स्किल्स होने चाहिए मेरे में। आई शुड बी गुड इन टॉकिंग टू पीपल, कम्युनिकेटिंग विद द पीपल, मीटिंग विद द पीपल। थर्ड इज द कॉन्सेप्चुअल स्किल्स. कॉन्सेप्चुअल स्किल्स मीन्स ability to think in the right direction, और वो डायरेक्शन क्या होती है एज अ मैनेजर? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स भी आप में होने चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, ह्यूमन स्किल्स होने चाहिए, एंड देन वी शुड बी एबल टू हैव द स्किल्स विच शुड बी एबल टू बी यूज फॉर थिंकिंग फॉर लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द फर्म। ये लॉन्ग टर्म डायरेक्शन वाला वर्ड अभी हमने कुछ देर पहले भी कुछ स्लाइड्स में यूज़ किया है। अब उसी के रेलेवेंस से लेट्स सी, थोड़ा सा हम इसको इस तरह देखते हैं। मैंने लॉन्ग टर्म डायरेक्शन का वर्ड यूज़ किया था टॉप मैनेजर्स की रेलेवेंस से। सो हम इस डायग्राम में ये देखते हैं कि 3 स्किल्स हैं, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को और ये जो बाकी 2 स्किल्स हैं, यानी स्किल्स की टाइप्स जो हैं, इनको हमने रिलेट किया है इस डायग्राम में विद द टाइप ऑफ मैनेजर्स। और टाइप ऑफ मैनेजर्स हमने कुछ देर पहले देखे थे। दीज आर द टॉप मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स एंड द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो टॉप मैनेजर्स कौन थे? जी बिल्कुल, वो लोग जो कि ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। सो ज़्यादा सोचने का काम, ज़्यादा थिंकिंग का काम, ज़्यादा जजमेंट का यूज़ और एक्सपीरियंस का यूज़ करने वाला काम कौन करेगा? नॉट फर्स्ट लाइन, द टॉप मैनेजर्स। सो टॉप मैनेजर्स आर बेसिकली रिक्वायरिंग मोर ऑफ द कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। ये नहीं है कि बाकियों को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये डायग्राम ये बता रही है कि कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत किसको है? टॉप मैनेजर्स को। अच्छा, अब जब ह्यूमन स्किल्स की बात आई थी तो मैंने कहा था इट्स अबाउट द एबिलिटी टू मीट, कम्युनिकेट एंड
हैविंग एट ईज विद अदर पीपल। सो लोगों के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करने की कैपेबिलिटी, उनके बातों को सुनने की, उनको कम्युनिकेट करने की, उनके साथ अच्छे तरह घुल मिल के रहने की एबिलिटी ह्यूमन स्किल्स है। तो ये तो किसी एक मैनेजर को तो रिक्वायर्ड नहीं होगी। यही ये डायग्राम बता रही है कि ह्यूमन स्किल्स आर equally required by all types of managers, whether he or she is a top manager, whether middle manager, or whether a first line manager, they all require human skills. So conceptual skills किसको generally ज़्यादा required होते हैं? top manager को। लेकिन human skills जो हैं they are equally required for the all types of manager, whether top, middle or फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। अच्छा, जब हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का जिक्र कर रहे थे तो याद होगा कि हमने ये कहा कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आर मैनेजिंग द नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़। और नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ में कौन आता है? टेक्नीशियंस, सुपरवाइजर्स, लेबर, वर्कर्स, ये सब लोग। तो इनको कौन मैनेज कर रहा होता है? फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो टेक्निकल स्किल्स किसके पास होने चाहिए, यानी प्रोडक्ट बनानी कैसे है, सर्विस एक्चुअली ऑफर किस तरह करनी है, जो लोग ऑफर कर रहे हैं उनको मैनेज करने वाले के पास ही फिर ये स्किल्स होने चाहिए। सो टेक्निकल स्किल्स ये नहीं कह रहे हम कि सबके पास नहीं होने चाहिए, लेकिन ज़्यादा किसको ज़रूरत पड़ती है? फर्स्ट लाइन मैनेजर को। सो टॉप मैनेजर को, आई रिपीट, that manager requires more of conceptual skills. The human skills are equally required by all levels of management, whether it's top, middle or first line manager, but technical skills are more required, less required by others but more required by the first line manager. Now same diagram but same concept in a different diagram rather. You can see हमने अब इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं कि स्किल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। टेक्निकल स्किल्स हैं, ह्यूमन स्किल्स हैं, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं, एंड वी हैव अ मोटिवेशन टू चेंज। मोटिवेशन टू चेंज का मतलब है कि चेंज या मैनेज की, सॉरी, मोटिवेशन टू मैनेज। मोटिवेशन टू मैनेज क्या है कि आप में ये मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप लोगों को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करें। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास स्किल्स आ रहे हैं और वाई एक्सिस पे हमने उसकी इम्पोर्टेंस शो की है, लो इम्पोर्टेंस एंड हाई इम्पोर्टेंस। और डिफरेंट कलर बैंड्स से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर बैंड्स हमने यूज़ किए हुए हैं, जैसे ग्रीन है फॉर टॉप मैनेजर्स, रेड इज़ फॉर मिडल मैनेजर्स, येलो हमने यूज़ किया फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए। और एक चीज़ हमने इसमें नई ऐड की है, वो है टीम लीडर। टीम क्या है? टीम क्या होती है? टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग टुगेदर। लोगों का एक ग्रुप जो इकट्ठे कोई काम कर रहा होता है और उसको जो ग्रुप को लीड कर रहा होता है वो कहलाता है टीम लीडर। तो हमने एक एडिशनल कैटेगरी डिस्कस करने के लिए यहाँ पे डाली है। सो टेक्निकल स्किल्स अगर आप देख रहे हैं, अगेन सबसे ज़्यादा किसको रिक्वायर्ड होते हैं? टीम लीडर को, क्योंकि उसने टीम लीड करनी है। और हमने जैसे अभी कहा कि और किसको सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को। ह्यूमन स्किल्स में आप देखें सारे कलर बैंड हाई की तरफ हैं, यानी दे आर इक्वली रिक्वायर्ड बाय ऑल, वेदर दैट पर्सन और दैट मैनेजर इज़ अ टीम लीडर, वेदर दैट मैनेजर इज़ फ्रंट लाइन मैनेजर, first line manager, top manager or whatever. So human skills are equally required. But talking about conceptual skills and motivation for change or manage, they are basically high in case of top managers. So वही concept एक different diagram के through दोबारा present किया है मैंने. When you talk about conceptual skills, they are more required by top managers. When you talk about
human skills, they are equally required by all types of managers. But when we talk about technical skills, तो हमने एक चीज़ और ऐड की कि generally they are more required by first line managers and also by the team leader. Alright dear students, यहाँ पे हम अपना फर्स्ट लेक्चर कंक्लूड करते हैं और अभी हम इन रोल्स को जिनकी हम बात कर रहे थे we'll talk about them one by one in more detail in the next lecture. आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी की. We talked about what is management. We talked about who's a manager. मैनेजर के बेसिक फंक्शन और कौन कौन से हैं मैनेजमेंट के. We talked about planning, organizing, leading and controlling. हमने ये देखा कि what are the skills which are required by a manager. What are the different roles a manager is supposed to perform. तो इस पे हम यहाँ पे अब एंड करते हैं. इंशाल्लाह in the next lecture we'll start from this point onward. We will again have a detailed insight or review on the different roles we are discussing and the skills which are required. So skills जो हैं इन पे हम ज़रा in depth थोड़ी discussion करेंगे. So till the next time, it's Allah Hafiz.